یہ جہاز المسیح کا لے مفتی صاحب آ گئے. یہ جہاز المسیح کا آپ کو صحیح بتاتے ہیں کتنی غلطی ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اور اللہ کا شکر ہے جی. فیصل بھائی کیا حال ہے؟ سر بڑی خوشی سر تشریف لائے آپ. مرحبا. اچھا، اعجاز المسیح. اعجاز المسیح یہ کتاب لکھی تھی مرزا قادیانی نے، اور یہ روحانی خزائن جلد 18 کے اندر یہ کتاب شامل ہے. مرزا قادیانی نے یہ کتاب کیوں لکھی تھی پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرزا قادیانی کو مناظرے کا چیلنج دیا اور وہ بادشاہی مسجد میں گئے، تو مرزا قادیانی اندر گھس گیا. جیسے آج کل مرزا جونیئر جیل میں کمرے کے اندر گھسا ہوا ہے، ایسے ہی وہ کمرے کے اندر گھس گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، مجھے جان کا خدشہ ہے، یہ پیر صاحب جو ہے نا اپنے ساتھ پٹھان لے کے آئے ہیں، تو یہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے ان کا. تو گھر میں بیٹھ کے اس نے ایک اشتہار جاری کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، اپنے آپ کو سچا کہتے ہو، تو ایک کام کر لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں عربی کے اندر، اور وہ تفسیر جس کی فصاحت اور بلاغت کے اندر اچھی ہوگی ہے نا وہ سچا ہوگا. مطلب یہ کہ یہ اپنی عربی کے اوپر مان کر رہا تھا، اور عربی کو اس نے اپنا فصیل بنایا اور عربی کے اوپر اپنا اس نے پیر صاحب نے پھر اس ٹائم فرمایا تھا کہ تو کہتا ہے کہ عربی کی تفسیر، تو ادھر آ، سامنے آ، کاغذ رکھتے ہیں، تو بھی اپنا قلم رکھ، میں بھی اپنا قلم کاغذ کے اوپر رکھتا ہوں، اپنے اپنے قلم کو لکھنے کا حکم دیتے ہیں، جس کا قلم تفسیر لکھے وہ سچا. تو یہ بھاگ گیا، اس نے وہ سامنے تو آنا ہی نہیں تھا. تو اس نے پھر یہ عربی کا سورہ فاتحہ کے اندر تفسیر لکھی تھی جس کا نام اس نے رکھا تھا اعجاز المسیح، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسیح کا اعجاز، یعنی عاجز کر دینے والی کتاب. تو یہ کتاب اس نے لکھ کے جناب رشید رضا جو کہ المنار رسالے کا ایڈیٹر تھا، مصر کے اندر جامعہ ازہر کا ٹیچر پروفیسر، تو ان دنوں وہ عربی کے اندر کافی ماہر سمجھا جاتا تھا کہ اس کی عربی بڑی اچھی ہے، فصیح و بلیغ عربی ہے، کیونکہ وہ عربی کا ٹیچر تھا. مرزا قادیانی نے پہلے اس کی ہے نا اپنے کتابوں کے اندر رسائل و جرائد کے اندر بڑی تعریفوں کے پل باندھ دیے نا. اس نے پہلے ایک زمین ہموار کی کہ آگے اس نے جو کرتوت کرنی تھی اس کے لیے زمین ہموار کی تھی کہ یہ کتاب میں اس کو بھیجوں گا، تو میں نے چونکہ اس کی تعریفیں کی ہوں گی تو وہ اس کے اوپر کہہ دے گا کہ یہ کتاب بڑی کمال کی ہے، بڑی جناب. تو جیسا کہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ بھائی جس کی عربی اچھی ہوگی تو وہ بندہ سچا ہوگا، تو لہذا میں پھر لوگوں کو کہوں گا کہ میں سچا ہوں. اب جب رشید رضا کے پاس پہنچی ہے نا تو اس نے آگے سے کیا کہا، اس نے، وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ روحانی خزائن جلد 18 کے مقدمہ کا صفحہ نمبر 8 ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے. اچھا جی، کہتے ہیں الہدا والتبصرہ
हजरत मसीह मूतरलह शलवार ने उलमाए हिंद के तासुब और इनकार हक पर असरार को देखकर शाम और मिस्र वगैरह के उलमा की तरफ तवज्जो फरमाई कि शायद इनमें से कोई ताईद हक के लिए खड़ा हो जाए। शाम के मुतल्लक मालूम हुआ कि वहाँ दीनी मुनाजरात की इजाज़त नहीं, इसलिए आपने जहाँ मिस्र के बाज़ उलमा और मदीराने जराइदो मुजल्लात को इजाजुल मसीह के चंद नुस्खे इरसाल किए। वहाँ एक नुस्खा तकरीज के लिए शेख मोहम्मद रशीद रज़ा मदीर अल मीनार को भी भिजवाया। मुनाजिर और अल हिलाल के मुदीरान ने तो इसकी फसाहत और बलागत की बहुत तारीफ की, मगर शेख मोहम्मद रशीद रज़ा ने नहवियों और अदीबों के इस्तेशहाद पेश किए बगैर लिख दिया कि किताब सहवो खता से भरपूर है और इसके सजा में बनावट से काम लिया गया है, लतीफ़ कलाम नहीं और अरब के मुहावरात के ख़िलाफ़ है, और 70 दिन की मुद्दत जो आपने इसकी मिसल लाने के लिए मुकर्रर की थी, इसका जिक्र करके उसने ये लाफ जनी की कि अन्ना कसीरन मिन अहलिल इल्मी यस्ततीऊना अन यक्तिबू खैरम मिनहु फी सबअती अयामिन अल मीनार जिल्द 4 सफ़ा 466। तर्जुमा नीचे लिखा है कि यानी बहुत से अहले इल्म इससे बेहतर 7 दिन में लिख सकते हैं। जब इसका ये रिव्यू हिंदुस्तान में शाया हुआ तो उलमाए हिंद ने उसकी आड़ लेकर हजरत मसीह मूतरलह शलवार के खिलाफ अज सरे नो मुखालफत का एक तूफान बर्पा कर दिया। तब आपने अहकाके हक और इब्ताले बातिल और इतमाम हुज्जत के लिए अल्लाह ताला से रहनुमाई चाही, तो आपके दिल में ये डाला गया कि आप इस मकसद के लिए एक किताब तलीफ फरमाएं और फिर मदीर अल मीनार और हर उस शख्स से जो इन शहरों से मुखालफत के लिए उठे इसकी मिसल तलब करें। चुनाचे आपने अल्लाह ताला के हजूर निहायत तदर्रो और खशू खदू से दुआ की, यहाँ तक के कबूलियत दुआ के आसार ज़ाहिर हुए। अभी इसका खुलासा मैं बयान करता हूँ कि रशीद रज़ा ने उसमें गोल दायरे लगा लगा के ना पूरी किताब को लालो लाल कर दिया, और उसने आखिर में लिखा कि ये किस उल्लू के पट्टे ने लिखे ये किताब। अब जनाब हो मिर्ज़ा कादियानी ने अल हुदा नाम की किताब लिखी और उसके अंदर रशीद रज़ा को गालियों के अंबार लगा दिए। आप उठा के देखिए रूहानी खज़ैन जिल्द 18 सफ़ा 252, 253, 254, ये सिर्फ 3 सफ़े देख लें। हो मिर्ज़ा कादियानी ने मोटी मोटी गालियां उसको रसीद की कि इनू ते आंदा कुछ नहीं, ये ते जाहिल दा पुत्तर है बड़ा वड्डा इनू तो पता ही कुछ नहीं है, इनू किन्ने अदीब बनाया है। बड़ी मोटी मोटी ताकि ये पूरा रिसाला जो है ना अल हुदा ये गालियों से भरपूर है। रशीद रज़ा की वो जनाब गालियां। अच्छा जी, अब ये इन्होंने जो मुकदमे के अंदर लिखा है कि मिस्र के और भी इन लोगों को ये रिसाला भेजा और उन्होंने उसकी बड़ी फसाहत और बलागत की तारीफ़ें की थी, जैसे मुनाजिर रिसाला था और अल हिलाल रिसाला था। तो आज तक कोई कादियानी उन तारीफों के जो पुल बांधे थे उसकी कोई दलील तो पेश कर नहीं सके।
और भाई जो उन्होंने मुनाजर और अल हिलाल के मुदीरान ने जो फसाहत और बलागत के चर्चे किए थे इजाजुल मसीह के, वो दिखाओ तो सही कहाँ है? अच्छा, फसाहत और बलागत के ये चर्चे हैं, ये वाले चर्चे हैं कि उसका टाइटल पेज के अंदर इतनी इतनी फाश गलात, वो कहता है व इन्ना किताबी हाजा बलीगुन व फसीहुन व मलीहुन, मेरी ये किताब बड़ी फसीह, बलीग और मली है। और ये अंदाजा कीजिए, कहता है ये मैंने किताब लिखी है फी सब ईना यौमन मिन शहर सियाम, रमजान के 70 दिनों के अंदर। वो कौन सा रमजान है दुनिया का जिसके 70 दिन होते हैं? 70 दिनों वाला रमजान कौन सा है कादियानियों? फिर आगे कहता है फी मकाम तब ई कादिया, ये कौन सी अरबी है जिसके अंदर नून गुन्ना होता है? जिला गोरदारसपुर। अरबी के अंदर जिले को जिला नहीं कहते, अरबी के अंदर गाफ नहीं होती, अरबी के अंदर पे नहीं होती, अल हकीम फजल दीन अल बहेरवी, दो चश्मी बे नहीं होती। तो ये इसका टाइटल पेज का ये आप देख लें तो आगे इसने क्या जनाब गलतियां की होंगी वो तो मैं आपको क्या ही बताऊं। सिर्फ इसके टाइटल पेज को ही आप जरा देखें। इसने जो ये कहा है ना, सेहतुन नियति वाला यहसिरु अनसाइदही लिल मुकाबिला, ये वाला जो लफ्ज है टाइटल पेज के ऊपर। अब इसकी फसाहत और बलागत की गलतियां ये मैंने लिखी हुई हैं। इसको अगर आप, ये उलमा को ही समझ आनी है, आम बंदों को ये समझ ही नहीं आनी। ये रूहानी बात है मुफ्ती साहब, हर बंदे को किधर समझ आएंगी। नहीं वैसे भी है ना, ये चूंकि हैं इल्मी बातें ना, वो आम बंदे को नहीं समझ आनी। जी जी जी। अब ये जो सेहतुन नियति, ये गैर मुसज्जा व गैर मुकफ़ा है, इसके अंदर सजा नहीं है। और इसके अंदर जो पहला इसका ये जो जुमला है कि जनाब अल खफिया, फिर इसने आगे लिखा अर रूहानिया, और आगे जाके ये लिख रहा है सेहतुन निय्या, तो ये गैर मुकफ़ा है, बलागत के असूलों के खिलाफ है ये। तो यहां पे मुफरत लेके आ रहा है इब्तदा के अंदर, आगे जाके ये मुरक्कब इजाफी लेके आया है। ये कलाम गैर बलीग है, इसके अंदर बलागत नहीं है, गैर फसीह है, इसके अंदर फसाहत नहीं है। आगे जरा देखिए, बित तदब्बुरी व सेहतिन निय्या। अब ये कलाम ऐसा है कि इसमें वजन बरकरार नहीं है। और अब चूंकि मैं कलाम इसके ऊपर मजीद करूंगा तो किसी को कख समझ ही नहीं आनी, क्योंकि फसाहत और बलागत की ये बातें हैं, उलमा को तो समझ आएगी। अब यहां पे किसने लफ्ज बोला है, मा मुआरिफी हा अल मखफिया, ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये वाला जो लफ्ज है मखफिया। अब आज शामिला के अंदर हमने सर्च किया है तो अल मखफिया, ये 3400 किताबों के अंदर इसके नताइज आए हैं जनाब, 56 नताइज आए हैं, 56 नताइज। और जबकि इसके मद्दे मुकाबल लफ्ज है खुफिया,
उसके जब हम देखते हैं तो उसके नतीजे आए हैं 6825। पता क्या चला कि ये गैर बलीग कलाम है, इसके अंदर फसाहत और बलागत नहीं है, इसलिए ये लफ्ज जो है ये बहुत कम इस्तेमाल होता है अरबी के अंदर, बहुत शाज है ये कलाम। हाँ जी, अब आपको समझ आई। इसके टाइटल पेज की 10 फाश अगलात आजज ने निकाली हैं, 10 फाश अगलात सिर्फ टाइटल पेज। आगे किताब की बात तो छोड़ ही देना। अच्छा, फिर क्या करता है ये, अच्छा ये कहता है कि मैंने अल मीनार के एडिटर और उसके साथियों को अपनी किताब इजाजुल मसीह भेजी और गरज ये थी कि इस पर मुनासब और हस्बे मौका तकरीज लिखे, और मैंने शाम और रूम और अरमैन के उलमा को छोड़कर इन्हें चुना कि शायद इन्हीं की वजह से। मिर्जा कादियानी तो ये कहता है मैंने सिर्फ अल मीनार के एडिटर को भेजी, और मुकदमे के अंदर वो देखे कितनी बड़ी गप मार गया है वो मुकदमा लिखने वाला। ये देखो मिर्जा कादियानी तो कहता है मैंने तमाम को छोड़ दिया था, सिर्फ रशीद रजा को चुना था। ये रूहानी खज़ैन जिल्द 18 सफ़ा 253 के ऊपर वो कह रहे हैं, जबकि इन्होंने इधर देखें, यहाँ पे देखिए, ये मुकदमा है। मुकदमे वाला लिखने वाला जो है ना, वो कहता है कि जनाब इजाजुल मसीह के चंद नुस्खे इरसाल किए, वहां एक नुस्खा तकरीज के लिए रशीद रजा मदीर अल मीनार को भेजा। मनादर और अल हिलाल के मदीरान ने तो इसकी फसाहत और बलागत की बहुत तारीफें की। ये देखिए, और मिर्जा कादियानी कुछ और कह रहा है और ये चमचे कड़छे कुछ और कह रहे हैं। ये देखो यार, जैली मसीह के जैली उम्मती हैं। आगे देखिए जी, आगे कहता है ये ले जनाब, ये अल हुदा जो ये रसाला है ना, उसकी वो वजह बता रहा है यहाँ पे रूहानी खज़ैन जिल्द 18 सफ़ा 263 के ऊपर। सुनिएगा, कहता है पास मेरे दिल में डाला गया कि मैं इस गरज के लिए एक किताब बनाऊं, फिर उसकी मिसल मांगू इस एडिटर से। चल, पहले लितर तुम्हें कम पड़े थे। ये देखिए, ये भी अरबी के अंदर इसने लिखी अल हुदा, अरबी के अंदर है, और तर्जुमा भी खुद ही की है नीचे। यकीन जाने अल्लाह की कसम, इसकी इतनी फाश गलात, अरबी के अल्फाज कुछ और, तर्जुमा कुछ और, मुतरजिम भी खुद ही है। और मेरे जैसा एक छोटा सा बंदा जो है ना, मैं कहता हूं एक सफे के ऊपर कोई 50-50 गलतियां निकाल दे हैं। और पहले लितर कम पड़े थे कि जो अल हुदा लिख के लो जी मैंने इरादा किया कि इसको भेजूं और इसकी मिसल। और भाई जहालत की कौन सी मिसल होती है पागलो, जहालत की कोई मिसल होती है? कहता है मैं फिर एक किताब लिखी है ये अल हुदा, तो मेरा इरादा है कि ये मैं इसको भेजूं और कहूं कि इसकी मिसल लेके आओ। पागल दा पुत्र ना हुए तो यार। तो चलो बहरहाल है कोई कादियानी, आओ सामने आओ बात करो। और मैं कहता हूं अरबी तो बड़ी दूर की बात है, उस बेचारे को उर्दू तक नहीं आती थी, उर्दू तक नहीं आती थी। आओ आजो करो बात हमसे, हम तुम्हें दलाइल लेके आते हैं। ये तो अभी वो जिया बैठा था, वो लम यलिद व लम यूलद बता रहा, वो इनको तो आती जाती खे नहीं। मैं कहता हूं इन्होंने जो कुरान के तर्जुमे किए हैं, एक आयत का तर्जुमा ठीक नहीं की, एक आयत। चैलेंज है ये, चैलेंज। कुछ एक आयत का तर्जुमा बता दे, ये बिल्कुल ठीक है जी, आजो कर लेते हैं बात, चलो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। और फिर सरफी, नावी, अदबी, बलागत, फसाहत और मलाहत,
اور منطق اور فلسفہ اور بہر اعتبار پھر گفتگو کریں گے اس کے اوپر. آؤ, اس کو تو آتی جاتی کھے نہیں تھی. خواجے دے گوا ڈڈو جیسی وہ خود جاہل تھا, اس نے آگے جو ہلا اس کی ٹیم ایک تیار کر لی بس, جو اس کی واہ واہ کرنے والے پاگل دے بچے نہ ہوں. چلیں جی کریں بات. مفتی صاحب وہ نیچے سے کوئی آ نہیں رہا اوپر, ابھی کیا کریں؟ اور نہیں وہ نیچے ہی رہنا نا, جب نیچے ہے تو نیچے ہی رہنا, ٹپ 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 بس. وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لاہور جاتے تھے تو ادھر ایک بس چلتی تھی, وہ آواز دیتے ہوتے تھے بارو بار لاہور, ہے نا؟ تو وہ یہ جب آپ کو دیکھتے تو یہ بارو بار براڈ سے گزرتے. یہ اور اوپر نہیں ہمت نہیں جی, ہمت نہیں. ان کا تو بڑا جو تھا وہ ہمارے بابا جی کے سامنے نہیں آ سکا تھا, تو ہم تو اپنے بابا جی کے بچے ہیں. پیر میرے علی شاہ میرے بابا جی ہیں, بالکل. تو یہ کہاں پہ آئیں گے؟ ان کی ایسی کی تیسی. ان کا آج کل کا جو گرو ہے اس بیچارے کو مرزا مسرور, وہ بیچارے گل ہی نہیں, منہ چ نکلتی ہوئی کوئی نہیں سو. اور چندہ آخر میں یہ بھی کہتا ہے. وہ بیچارہ اوپر سے دیکھتے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی جی. صاحب سوری بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. آئی تھنک آپ وہی ہیں جو رات کو بھی ایک براڈ پہ بیٹھے تھے, جن کا آپ کا آئی تھنک منگل والے دن کا مظاہرہ طے ہوا ہے, رائٹ؟ او بس جی کئی منگل آئے تو کئی گئے تو کئی طے ہوئے. او وہ باتیں ہی ہوتی ہیں بس, طے نہیں میں آپ کو بڑے غور سے سنتا ہوں, میں ڈیلی آپ کی سنتا ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ اچھی بات کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے طے ہوئے ہیں لیکن آتا کوئی نہیں ہے. آتا کوئی نہیں ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. یہ مفتی صاحب نیچے ایک بندہ ہے, وہ نا تنگ کر رہا تھا, تو میں نے اس سے وعدہ کر دیا کہ اگر وہ لجنا اپنی بہن کا رشتہ دے مفتی صاحب کو تو میں حامی بھر لیتا ہوں. اور نہیں ایسی ہمیں باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دلائل والے لوگ ہیں, ہم آؤ کرو بات کرنی ہے, جس نے کرنی ہے دلیل سے بات کرے, بس ٹھیک ہے. ہم نشانوں سے ان کا منہ بند کریں گے. السلام علیکم. ان کے پاس دلائل کہاں سے آ گئے؟ مفتی صاحب پرسوں والے دن کیا وہ جو مسرور بیٹھا ہوتا ہے نا, تو اس نے کہا لے کے آیا قرآن پاک کی آیت لرفعنا ہو, اس کو وہ ملا رہا تھا اپنا بل رفع اللہ سے. کہتا ہے یہ پڑھ لکھا ہوا ہے رفع اللہ, اور میں نے کہا اندھے تجھے نہ قرآن پاک آتا ہے نہ تمہارا عربی سے واسطہ ہے نہ تمہیں اس کا ترجمہ آتا ہے, دیکھ کے ذرا نیچے پڑھ لکھا کیا ہوا ہے. یہ رفع اللہ نے لکھا ہوا, لرفعنا لکھا ہوا ہے, اس کا معنی اور ہے, بل رفع اللہ کا معنی اور ہے. وہ بھی آپ والی بات ہی ہاں ادھر ادھر کرتے بھاگ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں جی ان کا تذکرہ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلی وہی مرزے کی پہلی بالکل پہلی نمبر 1 پہلے صفحے کے اوپر وہ عربی کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور میں کہتا ہوں اس کے اندر میں کہتا ہوں کوئی 50 غلطیاں میں نکال دیتا ہوں, آ جاؤ کوئی بات کر لے. وہ کوئی جملہ بندی نہیں ہے. جہاں پر ماضی کا سیکھا آنا تھا وہاں پہ مضارع ٹھوک دیا, مضارع کا آنا تھا امر ٹھوک دیا ہے. اور پتہ نہیں کیا آئٹم تھی یار یہ. مرکب اضافی کا قاعدہ کل یہ ہے کہ مضاف کے اوپر الف نام نہیں آتا. لو جی مرکب اضافی کے اندر مضاف کے اوپر الف نام ٹھوکے ہوئے. چل پہلی وہی کی بات کر لو, صرف پہلی کی, آگے کی اس کی کرتوتوں کی نہیں, صرف پہلی. اور یہ نازل ہوئی ہے, یہ لاش نے نازل کی ہے جی حضرت جی, جو کہ 10 من کا تھا. مفتی صاحب ان کو کیا پتا عربی کے سیکھنے کیا ہوتے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے تو وہ 2 میل سے اوپر سے گر رہا ہوگا. پتہ نہیں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ان کو کیا پتا سیکھنے کا. وہ جناب فعل مضارع کے اوپر الف لام لگا دیا. چلو فعلوں کے اوپر کہاں پہ آتا ہے الف لام, پاگلو. بڑی دفعہ
ये कादियानियों से हमने पूछा है, उसकी पहली वही के ऊपर आओ करो बात, कोई आता ही नहीं है सामने, टिकता ही नहीं है। बस वो मौलवी आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक बंदर सुअर खंजीर तो तितर हो जाता है। चलो जी, यानी आखिरी जवाब ये होता है जी बंदर सुअर खंजीर। चल ठीक, बात करो यार। वो तुम्हारा मिर्जा कादियानी तो कहता है मुझे वही नाज़िल हुई है और मुझे बताया गया है कि मुझे मेरे फिरके के जो लोग हैं इल्म और मार्फत में वो कमाल हासिल करेंगे कि मुखालिफिन का दलाइल के जरिए मुंह बंद कर देंगे। करो ना मुंह बंद यार, किन्ने क्या ना करो, तुसी ते गालां दे जरिए मुंह बंद कर दियो पे हैं। एक ही तरीका है, दलाइल के जरिए मुंह बंद करो हमारा, आओ करो बात। और आगे से क्या होता है, वो मुरब्बी है इनका, मुरब्बी का नाम है मुरब्बी नादिर। वो मुनाजरा मैंने अपलोड किया है अपने चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। हुआ ये कि इन लोगों ने तो मुझे किया हुआ है ब्लॉक, किसी और बंदे ने नादर मुरब्बी को डाली कॉल और उसने मुझे भी बीच में शामिल कर लिया। चलो जी, मुझे देखते ही नादर मुरब्बी के वो एक रंग आए थे एक जाए। मैंने तो नहीं इससे मौलवी से बात करनी, ये गाली गलोच करता है, बदकलामियां करता है। और मैं क्या ठहर ते जा, केड़ी गाली बजे मैं आया ही हाँ, केड़ी गाली गलोच की थी। नहीं मैंने नहीं करनी। लो जी, बात शुरू हुई है, एक दलील, सिर्फ एक दलील, वो देख ले, टोटल 6 मिनट 12 सेकंड गुफ्तगू हुई है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। एक दलील के ऊपर भागने की है उसने, जवाब नहीं, और कोई गाली नहीं, कोई बदकलामी नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी इन लोगों ने ये तरीका पकड़ा हुआ है, तू तो गाली गलोच करता है। ओ भाई बात कर यार, गाली गलोच। तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए अगर हम गालियां बिल फर्ज गालियां दें भी कि ये हजरत मसीह मूतर लाए शलवार की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, क्योंकि गालियां देना तो उसका शेवा था। वो हर एक को जुरियातुल बगाया, रंडी के बच्चों, गश्ती के बच्चों और कुत्ती के बच्चों और हराम जादो, वो कहा करता था। गिन गिन के उसने 1000 लानते उलमाए इस्लाम को दी हैं। वो गाली के बगैर तो बात नहीं करता था। तो अगर बिल फर्ज कोई मौलवी ऐसा मिल जाए तुम्हें कि जो गालियां वाली बात करता हो, गालियां देता हो, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो अलग बात है कि हम गाली नहीं देते, हम दलील वाले लोग हैं, दलील से बात करते। हाँ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ जी, ग्रेप्स आर सोर्स, हाथ ना पहुंचे तो कहो जी अंगूर खट्टे हैं। वो बात करनी तुम्हें आती नहीं है, फिर तरह तरह के तुम हीले बहाने, कभी इधर जान छुड़ाने के लिए भागने के रास्ते तुम चोर दरवाजे तलाश करते हो। कभी जी ये मौलवी तो गाली बाज है, कभी जी ये मौलवी तो जाहिल है, कभी कुछ तो कभी कुछ। मुफ्ती साहब एक मिनट, खान ये ना लीड्स आया, इसे परमानेंट ब्लॉक कर दिया जी, सब करे परमानेंट ब्लॉक करो। ये अपने वो ये लाश 10 मन का जो है ना, वो जो उसी रजूलियत करवाता रहता होता था, ये वो लोग हैं। उसकी किसी एक चीज के अंदर ये इसको सच्चा नहीं, किसी एक चीज, कोई एक ना, वो इबादत के अंदर वो फेल हो जाता है। नमाजें वो नहीं पढ़ता था, रोजे वो नहीं रखता था, ज़कात उसने पूरी जिंदगी कभी नहीं दी, हज उसने पूरी जिंदगी कभी नहीं किया। ये तो इबादतों के मामले हैं। इंसानी मामलात के अंदर भी वो फेल है। ना वो हकूक़े ज़ौजियत पूरे करता है, ना वो अखलाकी तौर पे पूरा उतरता है। फिर जनाब किताबों कलम की बात कर लेते, किताबों कलम के अंदर वो बंदा फेल है।
मतलब किसी जिंदगी के किसी एक गोशे के अंदर उसको परफेक्ट साबित कर दो, आ जाओ। कोई एक गोशा बता दो उसका कि इसके अंदर बहुत जबरदस्त हजरत मसीह साहब की जय हो, कि सिर्फ नारे लगाने रखे हुए हैं कि नारे लगाने से बंदा सच्चा हो जाता है। कलम में तो मुफ्ती साहब बहुत तकड़े थे, उनका नाम था सुल्तानुल कलम, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? सुल्तानुल कलम जाहिल मुतलक था, सुल्तानुल फिल्म था वो कलम। सुल्तानुल छुरी। कहता है जी कुरान दी से बात करें, भाई कर ना कुरान दी से कर, कि कौन सी कुरान की आयत है या हदीस है कि जिसमें है कि मसीह जो होगा वो किताबें लिखेगा, मसीह जो होगा वो टानक वाइन पिएगा, शराबें पिएगा, मसीह जो होगा वो जानी होगा, शराबी होगा, भंगी होगा, फीमी होगा, वो 5 और 50 के नाम के ऊपर वो डाका डालेगा, गबन करेगा, लोगों को फ्रॉड करेगा, फ्रडिया होगा। करो कुरान दी से साबित करो, आओ कुरान दी से बात करते। हम कब कहते हैं नहीं कुरान दी से? कुरान दी से करेंगे, करो साबित कि उसका निशान होगा मसीह का कि उसके पछवाड़े से 16 दिन तक खून आएगा और वो लोगों को कहेगा ये मेरा मौजज़ा है। वो कहेगा कि मेरा ये मौजज़ा है, दिन और रात में 100 दफा टट्टी और मूत्र करना ये मेरा मौजज़ा है, और मिर्गी के दौरे पड़ना ये मेरा मौजज़ा है। दिखाओ कुरान हदीस कहां पे लिखा हुआ? किसी जगह टिकते ही नहीं है कादियानी। खुद कहेंगे कुरान हदीस से बात करनी है। मैंने कहा चल यार कर ले कुरान हदीस ना कर ले, करते सही मर जा किसे पेंडे पै ते सही तू। नहीं जी मैं ओदे नाल भी नहीं करनी ते ओदे नाल भी गल नहीं करनी, तेरे नाल भी नहीं करनी। अच्छा मैं कहा तू आपा ही दस दे किदे नाल करनी है। नहीं मैं किसी नाल भी नहीं करनी। चलो बस एनजी है जी। और कोई चार चफले कुछ भी ना चले ते। अच्छा फिरका कौन सा है तुम्हारा? फिरका बताओ। चलो यार भाई मैं फिरका अगर बता भी दो तो क्या मिर्जा सच्चा साबित हो जाएगा? है क्या कोई भाभी है तो वो अगर कहे मैं भाभी हूं तो क्या तुम सच्चे हो जाओगे? मिर्जा सच्चा हो जाएगा? कोई बरेलवी है तो कहे जी मैं बरेलवी हूं तो क्या मिर्जा सच्चा हो जाएगा? पता नहीं अजीब मखलूक है कादियानियत। जिया जिया हाँ जी उन्हें कह के मेरा तो और कर लो।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਆਹੋ ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ वो ਕਹਿੰਦਾ या रसूल ਇਸਲਾਮ अमीन ਕੀ साहब, ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਓਏ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਚਲੋ ਯਾਰ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਵਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ चले जी अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब से वो सवाल भी नहीं किया या रसूल अमीनी भाई।